दोस्तों, चैप्टर 10 सर्कल्स के वीडियो के इस पार्ट 3 में आज हम एक्सरसाइज 10.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को अंत तक। So let us start. Now here is exercise 10.2 and question number 12. A triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. Means BD is given that 8 centimeter and DC is given that this is 6 centimeter. Okay, so one side is given 6 plus 8, that is 14. BC is given that 14 centimeter and requirement this side AB and AC. This side is AC. So find the value of side AB and measurement of side AC. And another things is given that radius of the circle is 4 centimeter. Okay, so this is the diagram of this question. Now how can you find the other two sides? Okay, so let us start the solution. First of all, you can see that here this is a circle with center O and has radius 4 centimeter. Now A, B and C, these are the external point of the circle. And dear, you know that tangents drawn from an external points are equal. So B is the external point, therefore BD and BF, these are two tangents, and these two tangents will be equal. So if the length BD is 8 centimeter, therefore BF is also 8 centimeter, because tangents drawn from external points are equal. And if BC is 6 centimeter, therefore CE is also 6 centimeter. Okay, now AE and AF, this is required things. So let us, the value of AE equal to X and A is also an external point, therefore AE and AF, these are two tangents and these two tangents will be equal. So therefore this is also X, means AE and AF of also X centimeter. So now let us the solution of this question, all the measurement you get here. Now first of all we will take let solution of this question. Let AE equal to X equal to AF, and similarly BD is given that 8 centimeter, and since this is the tangent, therefore BF is also 8 centimeter. Now moving for next thing, that is CD equal to 6 centimeter, therefore CE is also 6 centimeter. Now you will write the measurement of all sides. Dear, I want to tell you that the opposite side of the vertex is indicated for any triangle small a, and opposite side of the vertex B is indicated side small b, and the opposite side of the vertex C is indicated by the smallest letter C. Means you can write here for the measurement of the sides as AB
AB equal to, this is the opposite side of the vertex C. You can see here, this is AB, and AB, this is the opposite side of vertex C. So this side is indicated by the small letter C. C equal to how much? X plus 8 centimeter. Okay, so this is x plus 8 centimeter. Now next side BC. BC you will see here, this is the opposite side of the vertex A. So this is indicated by the smallest letter small a, and the value of this side is 6 plus 8, that is 14 centimeter. And after that new side, that is AC, and AC is this is opposite of the vertex B. So this side is indicated by the smallest letter B, and the value of this AC is x plus 6. So we can write here AC equal to B, and this is x plus 6 centimeter. Okay, now here you will get all the measurement of three sides of a triangle. If the measurement of three sides of a triangle is given, then you can find the area of this triangle using Heron's formula. You know very well. In class 9th you have to learn it, that Heron's formula. If the measurement of all sides are given, then you can find the area of this triangle. So for Heron's formula, first of all, here is requirement to find the semi-perimeter, that is S, and you know that S equal to A plus B plus C and divide by 2, and the value of A is 14 centimeter and the value of B is x plus 6 centimeter, and the value of C is how much? X plus 8 centimeter. So what you will get? Divide by 2. On simplifying it, you will get here S equal to, dear, you see, observe here, x and x, how much? 2x, and 6 plus 8, how much? 14. 14 and this 14, 28, means 2x plus 28. You will get the simplification of this, that is 2x plus 28 and divide by 2 centimeter. Okay. Now some students are writing here just like that, 2 and 2 is cancelled. So this is totally wrong. You cannot cancel this 2. Yes, of course you can cancel it if you take 2 as common. So we will take 2 as common here. Then we will get x plus 14 and divide by 2. Now dear, you can cancel it. 2 and 2 is cancelled out. So you will get the value of S, that is x plus 14, and this is centimeter. This is also centimeter. Okay dear, so this is the value of x. Now you can find the area of triangle ABC using Heron's formula. So dear, you can write here now area of triangle ABC using Heron's formula. And dear, you know that Heron's formula, what is the Heron's formula? Yes, you are telling correct, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप. Heron's formula यही होता है, area of triangle ABC, this is under root S minus A, S minus B and S minus C. Okay, so this is the formula, that is Heron's formula. Now you put all the values here. I want to tell you that once again, that is here the value of
ABC. What is the value of ABC? I want to tell you once again here. Now dear, just a moment. A equal to, you have to know, S equal to, just you have find here, this is x plus 14, okay, S plus 14, and A equal to, this is x plus 6, B equal to 14, and C equal to x plus 8. This is the value you have already find here. You can see this is the value of ABC. These are the value. अभी आपने इसे फाइंड किया था, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप यहाँ पे आसानी से पुट कर सकते हैं. ओके, सो डियर, व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस? यस, दैट इज अंडर रूट एस. एस मीन्स you will put this value, s plus 14, x plus 14. After that s minus a. So dear, s is x plus 14 and minus a. Minus a is this value. Okay, so x minus x, what you will get? X and x cancel, and 14 minus 6, what you will get? 14 minus 6 means you will get here 8. Okay, so you will write 8. After that into next thing, x minus b. S minus b, so s is this s plus 14 and minus b, so 14 minus 14, this is cancel, you will get only x, so you will write here x. And after that x minus c, you can observe here. Next thing is x minus c. S minus c, so s is x plus 14 and c is x plus 8. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x minus x cancel, 14 minus 8, what you will get? 8. So you will write here 8. Now simplifying this, you will get what? You will write just like that, 6 and just a moment dear, 14 minus 6 how much? This is 8, and 14 minus 8 how much you will get? 6. Here is not 8, here you will write what? 6, only 6, not 8. So you will write here 6 centimeter. So here is the correction. Now after that you will simplify it. You can observe that 8 and 6, 8 6 ja 48. Yes, so this is 48 and this is x, and x plus 14, just you will write into the bracket square centimeter. So this is the area of triangle ABC. Okay, सो लेट अस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. ठीक है, इसकी अब हम यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देंगे. आगे देखिए अब क्या करते हैं डियर, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, वी हैव टू ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी. ओ बी को ज्वाइन कर लिया, ओ सी को ज्वाइन कर लिया, ओ ए को ज्वाइन कर लिया. ऐसा करने से क्या हुआ, this whole triangle divide in 3 triangles. Just like that you can observe that AOB, and the second triangle is BOC, and the third triangle is AOC. Okay, so these are 3 triangles, and we can find the area of these triangles by using the simple formula half into base into height, because base is given and you know that point of contact always, radius is always perpendicular to the point of contact. तो ये D क्या था, point of contact है, तो ये perpendicular होगा. perpendicular का मतलब ये height होगा. इसी तरह से ये भी height होगा, OF और OE भी height होगा. और आपके लिए यहाँ पे ट्राइंगल AOC के लिए बेस हो जाएगा AC, ट्राइंगल AOB के लिए बेस हो जाएगा AB, और ट्राइंगल BOC के लिए बेस हो जाएगा BC. तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला करके यूज करके हम यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट टू फाइंड द
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस आप देखिए कितना है x+8 और हाइट कितना 4 ही रहेगा, सभी के लिए 4 रहेगा। और बी ओ सी के लिए आप देखिएगा बेस कितना है 8+6 14 × 4 और ए ओ सी के लिए क्या हो जाएगा x+6। तो चलिए अब वी विल फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/1। यस डियर, so first of all we will find here area of triangle AOB. Now area of triangle AOB, this is just half into base into height, and here is half base is अभी आपको बताया था क्या था x+8 और हाइट सभी के लिए फिक्स रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया है तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन सी दैट 2 इज कैंसल्ड आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिंप्लीफाइंग इट व्हाट यू विल गेट इट x 2x + 8 2 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, दिस इज वंस अगेन हाफ इंटू बेस BC का बेस कितना है, इट इज गिवन ऑलरेडी 14, 6 + 8, ओके, एंड हाइट इज 4। सो डियर अगेन यू कैन कैंसल्ड आउट दिस 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, this is 28 square centimeter. Now moving for next triangle, that is area of triangle AOC, and here given that half base कितना हो जाएगा इसके लिए x+6 और हाइट आपका फिक्स है 4 सेंटीमीटर। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं डायग्राम में, आप देखिए इतना ही दिया है। AC आपका क्या है, ये है, तो x+6 आपका ये बेस हो जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये सभी के लिए सेम रहेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट हम यहाँ पुट करेंगे। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने यहाँ पुट कर लिया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से ये 2 4 फिर कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x + 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अगर आप इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, होल ट्रायंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये पूरा आपने पता कर लिया है, BOC का भी एरिया पता कर लिया है और AOC का एरिया भी आप फाइंड कर चुके हैं। तो इफ़ यू ऐड ऑल द एरियाज ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स देन यू विल गेट द होल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और होल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं। आप देखिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे ये एरिया पता किया है। तो ये एरिया इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितने भी तरीके से फाइंड करें तो जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर जस्ट नाउ, that is area of triangle ABC just equal to area of AOC plus area of BOC plus area of AOB। यहाँ पे AOB लिख लो या फिर यहाँ पे AOB कर दीजिए, AOB और यहाँ पे आ जाएगा AOC। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने हीरोन्स फॉर्मूला से पता किया था, वो कितना था, इट इज जस्ट √48x एंड x + 14। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अपने फाइंड किया है, ये है 2x + 16। नाउ यू कैन पुट हियर 2x + 16
एंड एरिया ऑफ BOC ये आपका है 28 और एरिया ऑफ AOC अभी पता किया है, दिस इज 2x प्लस 12. Now you simplify right hand side, so you can see that 2x and 2x, how much? 4x. And 28 plus 12 40, and 40 plus 16 56. Okay, now you can put here this value, that is 4x plus 56, and you can take here 4 as the common, then you will get x plus 14, and the left hand side is 48x and x plus 14. But you cannot solve just now this step without removing this square root. So removing for this under root, you will use the using on squaring both side. बिना स्क्वायर रूट हटाए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, क्या बचेगा? ओनली यू विल गेट हियर 48x एंड x प्लस 14, और राइट हैंड में आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और जो ब्रैकेट में है उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस 14, दिस इज होल स्क्वायर. नाउ डियर यू कैन ऑब्जर्व दैट this whole square and x plus 14 is cancelled out from the both side, and 16 is also cancelled, 16 1 ja 16 and 16 3 ja 48. Now the remaining things in the left hand side only 3x and right hand side x plus 14. आप देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर में आपका एक ही टर्म कैंसिल होगा, x प्लस 14 तो फिर भी बचेगा. तो अब क्या करेंगे, ये x को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड में, तो आपका कितना आ जाएगा? 3x माइनस x इक्वल टू 14, दैट इज 2x इक्वल टू 14, एंड नाउ 2 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज 14/2 मीन्स 7. तो x का वैल्यू आपका आ गया 7. अब जब x का वैल्यू आ गया तो आप आसानी से अब ये जो साइड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आसानी से पता कर सकते हैं. आपको यहाँ पे पता क्या करना था? AB इज़ रिक्वायर्ड एंड AC इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये दो ही चीज़ें पता करनी थी. तो आप देखो यहाँ पे 8 तो पहले ही से पता था, x आपने और पता कर लिया, x कितना आया? 7. तो 8 and 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15. और इसी तरह से ये आपका 6 तो पहले ही पता था, और ये आपका कितना x है? 7. तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13. तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया. तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे फाइनली लिखना होगा. द वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू x प्लस 8, दैट इज 7 plus 8 means this is 15, and this is the side, so you will write centimeter, and AB is x plus 6 means x is how much? 6 plus 7. okay, so x का वैल्यू कितना आपको मिला है? 7 मिला है, 7 plus 6, so this is 13 centimeter. so dear दिस इज़ द रिक्वायर्ड थिंग, यही तो आपको पता करना था. तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. फाइनली दिस इज़ द आंसर, यही पता करना था. क्वेश्चन 13 इज गिवन दैट प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के बाहर बना हुआ है, सर्कल अंदर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो सेंटर पे उसके अपोजिट साइड्स पे जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर से, उसका सम सप्लीमेंट्री होगा. मतलब आप देखो कि AB का अपोजिट साइड क्या है? CD. तो AB सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, देखिए क्या एंगल बन रहा है? A, और ये आप इसे नाम दे दीजिएगा O,
लेट अस दिस इज ओ, ओके, सेंटर इज ओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ और ये ए ओ बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अपोजिट साइड में देखिए क्या हो जाएगा, सी ओ डी, तो ये सी ओ डी हो गया। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से आप देखो ए डी है, ए डी का अपोजिट साइड क्या है, बी सी, तो यहाँ पे ए डी साइड सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, ए ओ डी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो अपोजिट साइड है बी सी सेंटर से क्या एंगल बना रही है, सी ओ बी, सी ओ बी। तो यहाँ पे ये आपको प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको दो पार्ट में आपको करना है। तो किस किस तरह से आप करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आपका दिया और हमने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये मैंने अपनी तरफ से ज्वाइन कर लिया, मीन्स ओ पी को ज्वाइन कर लिया और इस तरह से ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लिया और ओ आर को भी ज्वाइन कर लिया, ओ एस को भी ज्वाइन कर लिया। तो ये सभी हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कि हम किस तरह से इसका बहुत आसान तरीके से इसका हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह क्या गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अब आप देखिए इतना ही दिया है और आपको कुछ नहीं दिया है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको। टू प्रूव में आप लिखेंगे टू प्रूव आपका है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, अपोजिट साइड में जाइए, ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ये आपका होगा सी डी। तो यहाँ पे सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट नंबर हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट भी इसका है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी डायग्राम में देखिए BC पर एंगल जो साइड BC साइड जो एंगल बना रही है सेंटर पे, उसका नाम क्या है, एंगल BOC। और BC की अपोजिट साइड क्या है, AD। आप देखिए ये AD BC का अपोजिट साइड है, ये BC है और BC का, तो ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है AOD। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखनी है, एंगल AOD। ये भी, इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस प्रूफ को करने के लिए आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है थोड़ा सा, तो वो कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन आपने किया है, देखिए ओ सेंटर ओ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम में, ये P O से ज्वाइन कर दिया, Q R S सभी हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आप ये भी अच्छे से जानते हो जो आपने थ्योरम पढ़ा है, प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या होगा, प्रूफ
तो प्रूफ देखिए बहुत आसानी से हम लोग करेंगे, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स अच्छे से जानते हैं क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलो देखें यहाँ पे कौन कौन से टेंजेंट हैं, क्या हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ए इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए से टेंजेंट्स आपका क्या हो रहा है, ए एस और ए पी, ठीक है। बी इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, बी पी एंड बी क्यू, एंड सी इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये हो जाए सी क्यू इक्वल टू सी आर। और डी इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ भी दो टेंजेंट होंगे, डी एस और डी आर। लेकिन आपको यहाँ टेंजेंट तो प्रूव नहीं करना है, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल। तो हम एंगल की ही बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे बार बार एंगल लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एंगल को नाम दे देते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने यहाँ पे एंगल का नाम पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका एंगल हो गया 1, ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ही जो पॉइंट ए है ये आपका हो जाएगा एंगल 2, ये आपका हो गया एंगल 3, ये एंगल हो जाएगा 4, ये एंगल ले लेते हैं 5, इस एंगल को लेंगे 6, ये आपका एंगल हो जाएगा 7, और लास्ट में ये एंगल होगा 8। हमने पूरे सर्कल के जो एंगल्स बाई पार्ट थे बाइफरकेट कर दिए, उनका नाम लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 जो हमने दिए हैं, अब वो उसको हम टेंजेंट से ही कोरिलेट करेंगे। आप देखिए ध्यान से, ये टेंजेंट्स और ये टेंजेंट इक्वल है, और ये आपका कॉमन साइड होता है ए ओ, तो ये तो आप क्या होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में इसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए हमने वो स्टेटमेंट लिखा। 3 और 4 इक्वल होगा, 5 और 6 एंगल इक्वल होगा, 7 और 8 भी इक्वल होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देयरफॉर tangent drawn from external points are equal, this implies that, तो हम यहाँ पे इक्वल लिख देंगे। इक्वल लिखने के बाद फाइनली हम ये भी लिखेंगे, तब उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सिंस tangent drawn from an external point to a circle subtend equal angle, subtend इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर टेंजेंट इक्वल होंगे तो फिर एंगल्स भी सभी इक्वल होंगे, एंगल्स एट द सेंटर। एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, तो जितने भी एंगल सेंटर पे बने होंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो आइए डायग्राम में देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज द थिंग्स। यू कैन सी दैट हियर इज ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट्स, एंड दी टू टेंजेंट्स आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल होगा ए ओ एस, ये आपका कैसा होगा, और ए पी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सभी पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बी इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, तो
एंगल पी ओ बी और पी क्यू ओ ये कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे जो ट्रायंगल है सी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह से लास्ट वन एंगल ट्रायंगल डी ओ आर और ट्रायंगल डी ओ एस ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहाँ पे 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। आप समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पे आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज टेंजेंट्स आर इक्वल। तो आप वो चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसे कंबाइंड रूप से इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये दूसरा एक और डेफिनेशन जानते हैं, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ऑफ ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो अगर आप वो जानते हैं तो लिख लीजिए, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स around of a point are 360 डिग्री, जिसे आप कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी एंगल्स पॉइंट ओ पर बने हुए हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं। एंगल 1 ये आपका एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यहाँ पे एंगल 7, एंगल 8, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है। यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 एंड डियर दिस इक्वल टू 360 डिग्री। यही कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम कोई इक्वेशन और बना देते हैं। मान लो हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, क्योंकि इसका उपयोग एक बार और करना है। अब इस इक्वेशन में बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं जो बता रहा हूँ उसे आप सुनते जाइए और इस वीडियो को एंजॉय भी करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एंगल 1 की जगह हम क्या करते हैं, एंगल 1 ही लिखा रहने देंगे, और एंगल 2 की जगह हम लिखेंगे एंगल 1। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, एंगल 3 हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे एंगल 4, और एंगल 4 को ऐसे ही रहने देंगे। एंगल 5 को ऐसे ही रहने देंगे, और एंगल 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 5। आप देख सकते हो एंगल 6 की जगह क्या है, एंगल 5 है। और एंगल 7 हटा देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे एंगल 8, चूँकि आप देखिए यहाँ पे 7 इक्वल टू क्या दिया है, 7 इक्वल टू 8 दिया है। तो 7 हटा देंगे, उसकी जगह 8 लिखेंगे, और एंगल 8 की जगह 8 ही रहने देंगे। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड जो है ना वो 360 डिग्री है, वो अभी भी 360 रहेगा। ऐसा करने से आप ऑब्जर्व करिए कि हर एक जो एंगल है वो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। आप देखिए ये वाला एंगल, दिस इज जस्ट ट्वाइस, ये भी ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस हो गया, ये भी ट्वाइस। तो आप लिख ही लीजिए 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 4
प्लस 2 इंटू एंगल 5 प्लस 2 इंटू एंगल 8 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, एक मिनट 2 लिख लीजिए। 2 इंटू एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे हमने जो रिप्लेसमेंट किया है, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया और एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख दिया, एंगल 6 की जगह एंगल 5 लिख दिया और एंगल 7 की जगह एंगल 8 लिख दिया। ऐसा क्यों किया है? आओ डायग्राम में देख के आपको समझा देते हैं। ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं, नो कन्फ्यूजन हियर। आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 और 2, यहाँ पे आपको प्रूफ तो ये करना है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स में आप देखिए तो हमने यहाँ सबसे पहले साइड BC और AD ले लिया, ये साइड ले लिया और ये साइड ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों साइडों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो AD है, AD पे एंगल क्या क्या बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे एंगल 1 है और यहाँ पे क्या है एंगल 8। तो हमें एंगल 1 और 8 चाहिए केवल। और यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइड पे एंगल 4 है और एंगल 5 है। तो ये दोनों एंगल हमें चाहिए। आप देखो ये क्या है 4 एंगल और ये है एंगल 5। इसी तरह ये आपका कौन सा एंगल है 1 और एंगल 8 यहाँ पे। तो ये चारों एंगल हमें चाहिए। इन दोनों का 1 और 8 का सम बताइए कितना हो जाएगा। 1 और 8 को अगर प्लस करेंगे तो ये आपका होल एंगल हो जाएगा। ये एंगल 1 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो इस साइड से सबटेंडेड एंगल का नाम क्या होगा AOD। ये AOD हो जाएगा। और BC जो साइड है इससे सबटेंडेड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए BO और C, BOC हो जाएगा। तो हमें 4 और 5, 4 प्लस 5 की जगह BOC लिखना है और 1 प्लस 8 की जगह क्या लिखना है AOD। इसीलिए हमने इसे इसका रिप्लेसमेंट किया एंगल्स का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे वही चीज़ करते हैं। 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे और 2 कॉमन लेने के बाद आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। और ये 2 तो ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो आप देखो राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे और इसका अरेंजमेंट कर लीजिए। हमने आपको बताया 1 के साथ क्या आना चाहिए एंगल 8 और प्लस 4 और 5 एक साथ आना चाहिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो ट्रांसपोज कर दिया है। तो आप देखो एंगल 1 और एंगल 8 की जगह आपको क्या लिखना है, एंगल 1 और एंगल 8 की जगह आप लिखेंगे एंगल AO नहीं था, कौन सा एंगल था AOD ही था। AOD प्लस 4 और 5 की तरह क्या था एंगल BOC और 360/2 कितना होता है 180 डिग्री। तो आप चाहो तो इसको अरेंज कर लीजिए। BOC पहले लिख लीजिए एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये आपका रिजल्ट था जो आ गया। फर्स्ट रिजल्ट आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या आंसर की नहीं प्रूफ, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलिए बाद में लिख लेंगे प्रूफ। अब देखिएगा सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बना के रखी है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी बात करते हैं। इसी को फिर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अब हम दूसरी चीज को रिप्लेस करेंगे। हमने अभी क्या किया था, एंगल 2 रिप्लेस किया था और एंगल 3 रिप्लेस कर दिया था और फिर एंगल 6 रिप्लेस किया था और एंगल 7 रिप्लेस कर दिया था। जो बचा था वो 1 4 5 8 बचाया था। अब हम ये सर्कल में जो एंगल लिखे हैं वही एंगल को बचाएंगे, बाकी सब हटा देंगे। मीन्स 1 की जगह क्या लिखेंगे 2 और 4 की जगह क्या लिखेंगे 3 और 5 की जगह क्या लिखेंगे 6 और 8 की जगह क्या लिखेंगे 7। किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 की बात, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे जितने सारे एंगल लिखे हैं ना, इन एंगल्स को अब हम हटाएंगे। 1 की जगह 2 लिखेंगे और 3 की जगह 4 लिख देंगे, 4 की जगह 3 लिख देंगे और यहाँ पे 6 की जगह 5 लिख देंगे और यहाँ पे 8 की जगह 7 लिखेंगे। तो चलो वो लिख लेते हैं, लिख के देखिए क्या बनता है और क्यों ऐसा करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो देखो क्या मिलने वाला है, एंगल 1 आपको नहीं रखना है, उसकी जगह लिखेंगे एंगल 2, प्लस एंगल 2 अपनी जगह जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके बाद एंगल 3 अपनी जगह पे ही रहेगा और 4 हटा देंगे, 4 की जगह क्या लिखेंगे 3, प्लस एंगल 4 नहीं लाना है, एंगल 4 की जगह लिखेंगे 5 और सॉरी एंगल 4 आपको हटाना है कि नहीं हटाना है, एंगल 4 की जगह तो आपने लिख ही दिया है, 5 की जगह आपको क्या लिखना है 5 लिखना है और 6 की जगह 5 तो हटा के 6 कर देना है और एंगल 6 अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह से प्लस एंगल 7 अपनी जगह पे ही रहेगा और 8 को हटा देंगे, एंगल 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड जो आपका 360 डिग्री था वो भी अभी वैसा ही रहेगा। अब ऐसा करने से आप देखिए ये तो सभी ट्वाइस हो गए, आप देखिए एंगल 2 भी ट्वाइस हो गया, 3 भी ट्वाइस हो गया, 6 भी और 7 भी ट्वाइस हो गया। तो अगर ये हो ही गया है तो आप इसे लिख लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा 2 को तो ट्रांसपोज कर देंगे, 2 ट्रांसपोज करेंगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2। अब आप देखो यहाँ आपको पेयर बनाने हैं फिर से, तो किस किस का पेयर बनाएंगे, चलिए डायग्राम आपको बता देगा कि आपको किसका किसका पेयर बनाना है। आपको साइड देखनी है ए बी के अपोजिट में कौन कौन, ए बी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आप देखिएगा, यस दिस एंगल देखिए, दिस एंगल इज एंगल 2 और ये कौन सा एंगल है 3, तो आपको 2 और 3 चाहिए। इसके बाद में फिर और कौन सा एंगल चाहिए, 7 और 6 चाहिए, 6 और 7 एंगल चाहिए। तो यहाँ पे ए बी साइड है ना, ये ए बी साइड आप देख रहे हो ए बी साइड, तो ए बी साइड कौन सा एंगल बना रही है, यही तो बना रही है ए ओ बी, और सी डी जो साइड है वो सी ओ डी बना रही है, सी डी ये साइड है, तो यहाँ पे यही एंगल आ रहे हैं 6 और 7 और ये 3 और 2। तो 2 और 3 का पेयर बनाना है और 6 और 7 का पेयर बनाना है और 2 3 की लिखना क्या है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा एंगल ए ओ बी, और 6 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा सी ओ डी। तो ये भी याद रखना, मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ नीचे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, जो क्वेश्चन है जो स्टेप है ये आपकी नेक्स्ट हो जाएगी। दैट इज़ हमने यहाँ पे क्या किया, ये पेयर कंप्लीट कर दिया और ये पेयर कंप्लीट कर दिया। 2 + 3 की जगह लिखेंगे एंगल ए ओ बी और 6 और 7 की जगह लिखेंगे एंगल सी ओ डी, और 360/2 कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट आ गया, अब इसको अरेंज भी नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे ही। फर्स्ट आपका रिजल्ट ये था, ये वाला आप देख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा आपका ये आपका हो जाएगा ये रिजल्ट जो अभी अभी आपने पता किया है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल्स सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, है ना, या फिर आप फाइनल ये लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपने स्पेशल कुछ नहीं किया है, ये स्टेप लिखे हैं, इन स्टेप से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, तो न्यूमेरिकल स्टेप्स हैं। आपने ये मेन स्टेप है वो ये वाला स्टेप लिखा है, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 360। इसमें से पहली बार में आपने 2 और 3 को रिप्लेस किया और इधर 6 और 7 को रिप्लेस कर दिया, और दूसरी बार में आपने क्या किया 1 और 3 को रिप्लेस 1 और 4 को रिप्लेस कर दिया, और इधर आपने क्या किया था ये 5 और
8 को रिप्लेस कर दिया था, तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। और ये आपको पता ही चल गया था कि अगर टेंजेंट्स इक्वल हैं तो फिर ये जो है ना, ये सभी एंगल भी इक्वल होंगे। सो डियर, दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सो डियर, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।